شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ میرے دائیں بائیں آپ کو کچھ بچے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں سوال ہیں، شاید ان کو وہ شعور نہیں ہے کہ یہ زبان سے اپنے سوالات، اپنی تکلیف بیان کر سکیں۔ سو آج کا پروگرام ہر ماں دیکھے، ہر باپ دیکھے اور خاص طور پر اس پنجاب پولیس کو چلانے والا آئی جی پنجاب ضرور دیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس وہ محکمہ ہے جس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ معاشرے میں امن و سکون قائم رہے۔ یہ فیصل آباد کا علاقہ ہے اور یہاں پر ان 5 بچوں نے اپنے والد کھوئے ہیں، اور وہ سامنے جو بزرگ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 60 سال ہے، اس نے اپنے 2 جوان سال بیٹے کھوئے ہیں۔ کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ دونوں جوان سال بیٹے کھونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس گراؤنڈ میں آج اس کو اپنے بیٹے کا بلکہ اپنے بیٹوں کا ستھر بچھانے کی اجازت ملی ہے، یہاں کے ناخداؤں نے جہاں اس کو اپنے بیٹوں کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس گراؤنڈ میں آج سے 1 دن پہلے اس بزرگ کی بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ اس بزرگ نے اس گراؤنڈ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے ٹینٹ لگانا تھا۔ اس گراؤنڈ سے چونکہ ان کی محلے کا مین گراؤنڈ یہ ہے، اور عمومی طور پر فیصل آباد اور مضافاتی علاقوں میں یہ روٹین ہے کہ سوسائٹی کا، محلے کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو کامن سپیس سمجھا جاتا ہے۔ اس بیچارے غریب آدمی نے، 60 سالہ بزرگ نے اپنی بیٹی کو یہاں سے رخصت کرنا تھا، لیکن اس کو رخصتی کی اجازت نہیں ملی۔ مافیاز کے مطابق بیٹی رخصت کرنی ہے تو تمبو نہیں لانے، پتراں دا جنازہ پڑھنا ہی تے ٹھیک ہے، پتراں دا ستھر بچھانا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بیٹی رخصت ناکام ہو گیا، وہ نہیں کر پایا۔ وہ یہاں اپنے بیٹوں کا ستھر لے کر تعزیت کر رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، ہم بھی آئے، ہم نے بھی آ کر اپنی تکلیف کا اظہار کیا، ہم نے بھی آ کر ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب یہ پتہ ہے مافیا کون ہے؟ یہ وہ رذیل انسان ہیں، وہ خبیث انسان ہیں جن کی خباثت کے پیچھے بدقسمتی سے میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے جب میں یہ نام لیتا ہوں۔ میری شیر کی کھال ہے، جہاں پر آپ کو سنیے گا اور دیکھیے گا بھی، تڑتڑاہٹ، گرج، برس، یہی گراؤنڈ ہے۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں پر دیوانوں کی طرح گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے یہاں آپ کو نظر آئیں گے کچھ لوگ، وہ بتاتا ہوں، اس کے بعد ایک لمحے کے لیے سنیے گا۔ یہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ آپ نے سنی ہے، یہی گراؤنڈ ہے، اور یہاں پر مافیا کے ان گماشتے جو یہاں پر بدماشی کرتے ہیں، ان کا کور یہ سکرین پر دیکھیں۔ یہ یونیفارم میں موجود میرے شری جوان، جب ان کی سرپرستی ہو تو بھائی نالی میں گرا بندہ بھی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو فرعونیت سر پر چڑھ کر بولنے لگتی ہے۔ اور یہ وہ یونیفارم تھا جس نے ان لوگوں کو، یہ جو آج اپنے بیٹوں کے ستھر پر بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کو تحفظ دینا تھا ان سے۔ یہاں کے ناجائز فروش رپورٹڈلی یہ لوگ ہیں، یہاں منشیات کا کاروبار کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ رپورٹڈلی جو مجھے یہاں سے گواہی ملی ہے اس کے مطابق یہاں پر بھتھے کا کام کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور لینا کیا ہے؟ جا سگریٹ دی ڈبی لیا، جا کھانا لیا، پیسے نہیں دینے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی فرمائشات، اور اس میں وہ شاب اپنے 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہے۔ السلام علیکم چچا جی، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ بڑی دکھی دل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ بیٹی کی رخصتی تھی؟ بیٹی کی رخصتی تھی۔ کیا ہوا؟ 3 نومبر کو جمعہ شام ہم اسی وقت 4:45 بجے کے قریب ادھر یہ سلسلہ شروع کرنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ یہاں پہ ٹینٹ نہیں لگیں گے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محترم کا گراؤنڈ تھا، کسی کا بھی گراؤنڈ ہو جی، گورنمنٹ کا گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے بھیجا، میرے بیٹے آئے ہیں، انہوں نے پوچھا بھائی دیکھیں ہماری بہن کی شادی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب محلہ اکٹھا ہو گیا تو ادھر چلے گا جی، دوسرے پارک میں، ادھر وہ لوگ مسلح کھڑے تھے ان کے ساتھی،
मुझे एक चीज बताएं जी, क्या इस सोसाइटी में आपके मोहल्ले में ये तय हुआ है कि इस ग्राउंड में कोई शादी नहीं करेगा? नहीं सब करते हैं जी, जनाजे सब भी यहीं इधर करते बैठते हैं हैं, शादी? 70 भी इधर बैठते हैं। इधर ही करते हैं, ऐसे ही कर देने। तो आपसे क्या तकलीफ? उन्होंने मुझसे कुछ जुल्म करना था और क्या जी। कोई पैसे पूछे तो नहीं मांगे सी? पैसे क्या मांगने, आपको बता दिया कि 500,000 लेते हैं, रोटी के पैसे नहीं देते, खाना मंगवाते हैं वो नहीं देते। कोई रेडी वाले को कहते हैं इधर खड़े हो जाओ फल दे जाओ, वो पैसे नहीं देंगे। जब मांगेंगे तो उसके सर पे बट मारेंगे या उसके थप्पड़ मारेंगे, बस ऐसा करते हैं जी। बेटी की रुखसती किस तारीख को थी? 3 नवंबर को जी इधर हम टेंट लगा रहे थे, ये सान्या हो गया। 4 नवंबर को बरोज हफ्ता उसकी बारात आनी थी इधर। जिस दिन बारात आनी थी उस दिन बेटों का जनाजा उठा। हाँ जी, ये दरिया उसी कुर्सियों की सेटअप में है, ये जो जिस पर हम ये फातिहा कहने के लिए बैठे हैं। जी जी, ये शादी वाली दरिया है, उधर कुर्सियां भी हमने लगानी थी, लेकिन 5 मिनट में हमारे 2 बेटे कत्ल कर दिए उन्होंने जी। कोई झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ जी। इतने असी तंबू लाना चाहते सी जी, उन्होंने स्नेह कर लिया कि तंबू नहीं लगन देना, इन्होंने फड़ना अज। लेकिन असी फिर सारे बेटे भाई सारे असी इकट्ठे होके गए हैं, कोई 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਾਅਵਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ। 9mm ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜੀ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਭਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। कोई मुंडा फड़िया गया? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ये दोहरा कत्ल हुआ इस जी। इलाके में, कोई पुलिस का सीनियर अफसर यहाँ पर आया? आया जी, उधर हमने एहतजाज किया गेटों वाले चौक में जी। हाँ हाँ 4 नवंबर को उधर आके उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको इंसाफ मिलेगा, आप ये खाता बंद कर दें। हाँ। तो हमने बंद कर दिया जी, लेकिन वो रेड कर रहे हैं SHO साहब, लेकिन वो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है। एक भी उनका कोई भी बंदा काबू नहीं। काफी सारी वीडियोज हैं जिसमें पुलिस के मुलाजमीन यूनिफॉर्म पहनकर इनके साथ बैठे हुए हैं और जी पीने पिलाने के मामला चल रहे हैं। हाँ जी, वो इसीलिए तो वो पुलिस ये के बिगड़े। साथ इनका ताल्लुक किस बात पर है? क्या ये मुंशियात फरोश है जी, मुंशियात फरोश है। ओनली कोई कारोबार नहीं है, जीरो धंधा कोई नहीं। 068 नंबर की गाड़ी रखी हुई है जी, उसमें गन्ने होती हैं। जब जाते हैं कुछ ना कुछ लेके कहीं ना कहीं से आते हैं। ये किराए का काम तो नहीं है। करते, कब्जे शब्जे लेने ये का तो कोई ऐसा मामला? कि ये यही काम करते हैं, 2 नंबर धंधा करते हैं टोटल। ठीक हो गया। तो इनके असले जो हैं वो इनको कहाँ से आते हैं? क्योंकि गैर कानूनी असला रखने की तो इजाजत नहीं है। सर के थानेदार साहब जो हैं उनके पास बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी हवेली में बैठे हैं, तो फिर पीछे कोई चीज रह गई जी। नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जब कोई गुमाश्ता दंदनाता फिरता है और आम लोगों को अजियत और तकलीफ का शिकार बना रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रजील माफिया, रजील इंसान या रजील निज़ाम ज़रूर होता है जो उनको शेल्टर दे रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है, या उनसे अपने मजमूम मकासद पूरे करवा रहा होता है, और उसके लिए उनको एक हड्डी फेंकता है जिस पर वो लपकते हैं। तो मैं दस्तबस्ता दरखास्त कर रहा हूं कि जो इनको हड्डी फेंकता था या जो इनको अभी भी हड्डी फेंकता है, जो इनसे मजमूम मकासद पूरे करवाता है, वो लोग जरूर सामने आने चाहिए। क्योंकि किसी ना किसी की, मुझे ये तरतड़ाहट मेरे दिमाग में बैठी है गोलियों की, मैं काश ये जिम्मेदारान के भी दिमाग में बैठ सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये वो ग्राउंड है जहां पर बहन की रुखसती के लिए इंतजामात कर रहे थे 2 भाई। जिस दिन बहन की रुखसती होनी थी उसी दिन दोनों भाइयों को मार दिया जाता है, और मारने वाले कहीं पुलिस के टाउट हैं, कहीं इस इलाके के नाजायज फरोश हैं, कहीं मंशियात की कंजप्शन करने वाले लोग हैं, और कहीं गैर कानूनी असलहे के बलबोते पर पूरे फैसलाबाद में अपनी धाक बिठाने वाले लोग हैं। ये कौन सी जगह है जी? यहाँ सुहेल की मौत हुई है जी, मेरे बेटे सुहेल की मौत हुई है इधर जी। छोटे बेटे की ये जहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, ये खून है। ये जो दूसरा निशान है जी, ये क्या है?
ये मोहम्मद फैसल का जी, देखें ये खून कितना बह गया जी, ये सारा उनके दिमाग से गोली लगने में ये हुआ है। ये आप खून चेक करें, फैसल की मौके पर डेथ हुई? डेथ हुई जी 3 दिन पहले का ये वाकया। खून देख ले कितना है, जैसे बकरे का खून निकाला है ना जी, वैसे निकला हुआ खून, देखें ये खून है सारा। अल्लाह आपको सब्र दे, आसानी का मामला करे। कोई दुश्मनी तो नहीं थी इन लोगों की आपस में? अस्सलाम वालेकुम। ये कितने अरसे से इनका ये असले का इस्तेमाल, धौंस धांधली, डराना, मार कुटाई, कितने अरसे से? ये तकरीबन 5-6-7 साल ही हो गए तकरीबन। ये पहले इसने ये हवेली किराए पे ली हुई थी। ये सामने वाली? हाँ जी, ये वाली, ये रेड कलर का रंग किया हुआ है। उसके बाद ये इसने लिए कि इसके भी कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने। ये जो पेंट हाँ हुई जी, है, ये जो पेंट हुई है, ठीक है। अच्छा, ये स्कूल है क्या है? हाँ जी, ये नई हवेली बनाई हुई है, लाल हवेली। लाल हवेली ने नाम अच्छा रखा हुआ है, जुल्म वाली हवेली जो कहते हैं ना। हाँ। तो लिहाजा ये नंबर ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈਸ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਸ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪਾਊਡਰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਸਆਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਚੂਚੇ ਨੇ ਫੀਡਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂਸਣੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਟੰਗੀ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਾਲ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੱਤਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਚੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡੋਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸੀ। जिन्हें अगर ਸਾਨੂੰ पैसे ना देते तेन मारांगे। आईजी साहब देखते जाएं, सुनते जाएं, शर्माते जाएं, उसकी वजह पता है क्या है? ये फैसलाबाद और फैसलाबाद में मौजूद ये माफिया, यहाँ के चलाने वाले इंतजामात, ये जिन्हें मारिया उन्हें तो मारिया ही मारिया। मैनू तो शर्म आ रही है, पुलिस की कर रही सी, पुलिस उनके बर्गर ठोस रही थी, पुलिस उनकी बोतलें पी रही थी, पुलिस उनकी आइस के नशे में ऊपर कपड़ा डाल रही थी, मुआवनत कर रही थी। पहली जगह ये लेते हैं, उसके बाद वो सामने जी लाल रंग, आपको लाल है भाई, लाल है, लेकिन जुल्म का बदहाल है। सो ये सिचुएशन है जी, और आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, मेरी बड़ी मासूमाना सा ख्वाहिश है, मेरी मासूमाना ख्वाहिश ये है कि मेरे भाई, इस बुजुर्ग को जिसने अपने 2 बच्चे खोए, अपनी बेटी की रुखसती के दिन, अब वो उनके 5 बच्चों को पालेगा, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। खुदा से डरें, खुदा से डरें, कोई पूछने वाला किसी को नहीं है। ये ग्राउंड में शादी का मामला और वहां से मौत आम हो जाना। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई है, मेरे भाई कत्ल हुए इधर दोनों, मैं मौके पर मौजूद था। मेरे भाई भी डोगर है? ये भी डोगर है। आप भी डोगर हैं? हम भी डोगर कोई है। खानदानी दुश्मनी है, दावत कोई वाला ऐसा सवाल ही चक्कर नहीं था नहीं हमारा इनके साथ, आइस पीते थे, रूटीन कोई में? ऐसा मामला नहीं था। इधर से गुजरना मुहाल किया हुआ था इन लोगों ने हमारा, जीने नहीं देते थे। जो भी आता था आपका ही या हर किसी का? हर किसी का। मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग हैं ऐसे, हजारों लोग हैं। आप कोई सबसे भी आता पूछे, है ना, उससे पैसे कहीं मारते हैं, पीटते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसको डराते हैं कि तुमने इधर से गुजरना नहीं लोग है। क्यों नहीं खड़े होते थे इनके खिलाफ? क्यों नहीं तक बोलते थे? देखे ना कि पुलिस उनके पास है, पुलिस उनके साथ है, असला उनके पास है, किसने खड़ा होना है? कौन खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? ये बताए ना, ये देखे ना, ये हमारा भाई है, इसने बेटी तोड़नी थी, इसने 2 बेटे तोड़े हैं, बच्चे थे, जवान बच्चे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मरना ही हुई पई होनी। हाँ जी, उनकी माँ अभी तक सदमे में है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये इन्होंने जुल्म की खीर की है। भाईजान, मेरे पास सवाल नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। 12 साल से यही चैन चक्कर है। हर गरीब आदमी है, 500,000 दिहाड़ी, कौन इसके मुंह लगे? हर बंदा डरता था यार अपने घर को देखें या इनको देखें। आए दिन किसी ना किसी गरीब को मार रहे हैं, कूट रहे हैं। ये नहीं कि हर किसी को जो इनके हत्थे चढ़ जाए बस उसी के ही है, उसका जुल्म हो जाता है। पुछन दसन वाला कोई नहीं? पूछें सर कैसे? जो इनके साथ कंप्लेन करता था उधर से फोन आता, फलान बंदे ने आपको कंप्लेन की है, 4 नंबर इधर आता था, पुलिस इतला देती है? पुलिस इतला देती है। अगर बता दें इधर फायरिंग होती है, उससे पहले उसके घर में फोन आ जाता था इनका कि तूने देख सकते हैं, सरकारी वीडियो है ये,
पुलिस इनके साथ खड़ी हुई है, ये देखिए इसी डाले लेके आए हाँ ना जी, ये डाले उनके ऐसे तो उनके पार्टी हवेली चल में रही है। पार्टी हो रही है, ये चेक करें आप।